Hello students, so we are back with the Merchant of Venice. I hope you have seen my previous clips of the Merchant of Venice Act 1 Scene 1. We are on clip number 3. So what have we learned in clip number 1 and clip number 2? In clip number 1, of course, we had learnt about the characters of the Merchant of Venice. And in clip number 2, now we are talking about how Antonio was very sad, and he himself did not know the reason for his sadness. How his friends Salerino and Salanio, they try to find out the reason for his sadness, but try though they may, they are unable to find the cause for Antonio's sadness. Neither does Antonio know the main reason for his sadness. When they are trying to find out the various reasons for Antonio's sadness, at that time Antonio's best friend Bassanio comes along with his other colleagues, his other friends Lorenzo and Gratiano. Then when Bassanio is in the company of Antonio, both Lorenzo and Bassanio along with Salerino and Salanio, they leave the scene, they depart from the scene, and we see only Antonio and Bassanio on the stage. When two close friends are together, when they are alone, they generally talk things of great importance, things of great secrecy. So also here we see both of them talking something which is very private among themselves. Antonio wants to know the reason why Bassanio has come to him, and he reminds him that he was talking about some girl by the name of Portia. And then Bassanio, he reveals to Antonio, and then he says, then he reveals to Antonio about his innermost secret. In the meanwhile, when Gratiano goes away, when Gratiano and Lorenzo, they go away, Bassanio tells Antonio not to pay too much heed, pay too much importance to Gratiano's talk, because he talks a lot of rubbish without anything important in it. And then we commence with the play. When Gratiano tells Antonio, when Antonio bids farewell to Gratiano, he says, "Farewell, I'll grow a talker for this gear." Gratiano says, "Thanks in faith, for silence is only commendable in a neat tongue's dried." We had completed our clip till here. Now we continue from the next part. Then exeunt Gratiano and exeunt Lorenzo, Antonio speaks to Bassanio. He wants to find out the real reason for the visit of Bassanio. "Is that anything now?" says Antonio to Bassanio. "आपको कुछ मुझसे कहना है?" ऐसा Antonio Bassanio से कहता है. तो Bassanio जवाब देता है, "Gratiano speaks an infinite deal of nothing, more than any man in all Venice. His reasons are as 2 grains of wheat hid in 2 bushels of chaff. You shall seek all day before you find them, and when you have them, they are not worth the search." तो Bassanio Antonio से कहता है कि Gratiano के बात पर आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है. वो उसका जो टॉक है अनलिमिटेड टॉक है, लेकिन उसके टॉक का कोई मतलब नहीं, उसके जो बातों का कोई मतलब नहीं है, वो बेबुनियाद बातें करता है. ये इस प्रकार का है, जब किसान अनाज काटने के बाद ऐसा धान लगा देता है, एक ढीग लगाता है धान का. अगर आप उस बुशल्स में आप ढूंढोगे, आप दाना ढूंढोगे, आपको दाना नहीं मिलेगा, केवल धान ही धान मिलेगा. मतलब ग्रेशियानो के बातों में कोई दम नहीं है, इसलिए आप उसके बातों का ज़्यादा ध्यान मत दें. अंटोनियो जवाब देता है, "वेल, टेल मी नाउ, what lady is the same to whom you swore a secret pilgrimage that you today promised to tell me of?" तो जब बसानियो और अंटोनियो अकेले होते हैं, अंटोनियो अपने आप को बसानियो के साथ में अकेला पाता है, तो कहता है, "अच्छा मुझे बताओ, आप आज मुझे किसी लेडीज़ के बारे में, किसी लेडी के बारे में, किसी लड़की के बारे में आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे. आपने मुझे बताया कि आप एक सीक्रेट पिलग्रिमेज, आप उससे सीक्रेटली जाकर मिलना चाहते थे.
और उसके बारे में आपने प्रॉमिस किया था कि आज आप मुझे बताओगे। तो वो कौन लड़की है उसके बारे में आप मुझे बताइए। तो बसानियो जवाब देता है, इट्स नॉट अननोन टू यू अंटोनियो how much I have disabled mine estate by something showing a more swelling port than my faint means would grant countenance। बसानियो कहता है कि आप तो अनजान नहीं हो अंटोनियो, आप जानते हो कि किस प्रकार से मैंने अपने पैसे उड़ा दिया है, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना लैविश स्टाइल जी सकता हूँ, एक एक्स्ट्रावेगेंट स्टाइल जी सकता हूँ, और उतना पैसा मेरे पास है नहीं जितना पैसा मैंने खर्च किया। नोर डू आई नाउ मेक मोन टू बी अब्रिज्ड फ्रॉम सच अ नोबल रेट, बट माई चीफ केयर इज़ टू कम फेयरली ऑफ फ्रॉम द ग्रेट डेथ्स वेर इन माई टाइम समथिंग टू प्रोडिगल हैड लेफ्ट मी गैग। तो ये कहता है कि देखो, आप तो जानते कि मैंने पूरे पैसे खर्च कर दिया, और इसके लिए मैंने बहुत सारे उधार ले चुके हैं, और मैं चाहता हूं कि मैंने आपसे जो पैसे उधार में लिए हैं मैं उसे जैसे तैसा मैं आपको लौटा दूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हैं, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको पैसा दे सकूं। टू यू अंटोनियो आई ओ द मोस्ट इन मनी एंड इन लव, एंड फ्रॉम योर लव आई हैव अ वारंटी to unburden all my plots and purposes, how to get clear of all the debts I owe। तो बेसानियो कहता है कि अंटोनियो कि मैं आपका बहुत कर्जदार हूँ, मैंने आपसे बहुत सारे उधार लिया हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और इसी वजह से मुझे हिम्मत होती है कि मैं आपके पास आकर मैं अपनी दिल की भड़ास निकाल दूँ, मेरे दिल में क्या चल रहा है एक एक बात मैं आपके साथ आकर शेयर कर दूं, और किस प्रकार से मेरा प्लान क्या है, किस प्रकार से मैं अपना कर्ज़ आपको अदा कर सकूं, इसके बारे में आपको मैं बताऊं। तो अंटोनियो कहता है, आई प्रे यू गुड बसानियो, लेट मी नो इट, एंड इफ़ इट स्टैंड एज यू योर सेल्फ स्टिल डू विद इन द आई ऑफ ऑनर, बी अश्योर्ड my purse, my person, my extremest means lie all unlocked to your occasion। तो बसानियो कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बसानियो कि आप बिंदास मुझे बताइए कि आपका प्लान क्या है, आपको क्या चाहिए, आप मुझसे बेधड़क कह सकते हैं। और अगर जिस प्रकार से आप मेरे नज़रों में एक बहुत ही आदरणीय दोस्त है, एक बहुत ही इज़्ज़तदार दोस्त है, और अगर आपका प्लान भी उसी प्रकार का रहेगा, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ना केवल मेरा पर्स, ना केवल मेरी दौलत, इनफैक्ट मैं अपने आप को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को बेचने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको उस पैसों की ज़रूरत हो तो मैं कैसा न कैसा करके आपके लिए पैसों का बंदोबस्त कर सकता हूँ। तो बेसानियो कहता है, बेसानियो जवाब देता है, इन माई स्कूल डेज़ when I had lost one shaft, I shot his fellow of the self-same flight, the self-same way, with more advised watched to find the other fourth, and by adventuring both, I often found both। तो बेसानियो अपने बचपन की याद करते हुए कहता है कि जब वो स्कूल में थे और जब वो धनुष बाण से प्रैक्टिस करते थे, और कभी उसका एक आधी शॉट उसके जो निशान से चूक जाता और कहीं गुम जाता, तो बेसानियो क्या करता है, उसी वजन का, उसी लेंथ का एक और एक शाफ्ट, एक और एक तीर अपने धनुष में लगाकर, इस बार जहाँ पर उसने निशाना लगाया था उस निशाने में लगाकर उसी फोर्स से उस धनुष को, उस बाण को, उस एरो को छोड़ता, और इस बार बड़े ध्यान से देखता कि ये एरो कहाँ जाकर गिर रहा है। और कहता है कि जब मैं ध्यान देता हूँ तो जहाँ पर मेरा दूसरा एरो गिरता है वहाँ जाकर मुझे मेरा पहला एरो भी मिल जाता है। वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंने आपसे बहुत बार पहले भी उधार लिए हैं, इस बार भी उधार ले रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं ध्यान रखूँगा कि मैं पैसा कैसा खर्च करता हूँ,
और जिस प्रकार से मैं पैसा खर्च करूँगा, ध्यान से खर्च करूँगा, और मैं आपको वादा देता हूँ कि जिस प्रकार से मुझे मेरा दूसरा एरो मिल गया था, उसी प्रकार से मैं आपके पैसे भी लौटा दूँगा। बिकॉज वॉट फॉलो इज़ प्योर इनोसेंस। मैंने जो फॉलो करता है प्योर इनोसेंस, आई ओ यू मच एंड लाइक अ विलफुल यूथ दैट विच आई ओ इज़ लॉस्ट, बट इफ़ you please to shoot another arrow that self way which you did shoot the first, I do no doubt, as I will watch the aim, or to find both, or bring your later hazard back again, and thankfully rest better for the first. वो कहता है कि आप जैसा मैंने हिम्मत करके दूसरा एरो शूट किया था, और मैंने किस प्रकार से अपने सेकेंड एरो के बदौलत अपना फर्स्ट एरो भी रिट्रीव किया था, उसी प्रकार से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे एक बार लोन दे दीजिए, और इस बार मैं ध्यान से आपका पैसा खर्च करूंगा, और वादा करता हूं कि मैं आपका पहला जो कर्ज़ आपसे जो लिया है और अभी जो आप मुझे कर्ज़ देने वाले हैं, दोनों मैं आपको लौटा दूंगा। अंटोनियो इसका जवाब देते हैं। अंटोनियो थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं कि बसानियो शायद अंटोनियो को ठीक ढंग से नहीं पहचानते, क्योंकि अंटोनियो ने कहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी भी आपके लिए दाव पर लगाने के लिए तैयार हूँ, और ये क्या पैसों की बात कर रहा है। अंटोनियो कहता है, यू नो मी वेल एंड हियर इन स्पेंड बट टाइम टू वाइंड अबाउट माई लव विथ सर्कमस्टांसेस, एंड आउट ऑफ डाउट you do me now more wrong in making question of my uttermost, that if you had made waste of all I have, then do but say to me that I should do, that in your knowledge may by me be done, and I am pressed unto it, therefore speak. तो अंटोनियो कहता है कि आप मुझ पर डाउट कर कि मैं आपको पैसे दूंगा या नहीं, ये डाउट करके आप मुझे परेशान कर रहे हो, कि आप मुझसे और आप गलती कर रहे हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पैसा दूं, आपको इस प्रकार के घूम फिर कर बातें नहीं करना है। मैं जानता हूं कि मुझे आपको पैसे देने हैं, और मैं आपको पैसे ज़रूर दूंगा, तो आप घबराइए मत, आप बेधड़क आप मुझसे बातें कर सकते हैं। तो बेसानियो कहता है, बेसानियो अब बोलता है, इन बेलमोंट इज़ अ लेडी रिचली लेफ्ट, एंड शी इज़ फेयर एंड फेयरर दैन द वर्ड ऑफ वर्चुअस, समटाइम्स ऑफ वंडरस वर्च्यूज़, समटाइम्स फ्रॉम हर आइज आई डिड रिसीव fair speeches, fair speechless messages. Her name is Portia, nothing undervalued. To Cato's daughter, Brutus's Portia, nor is the wide world ignorance of her worth. तो बेसानियो कहता है कि बेलमोंट में एक लड़की है, उसका नाम पोर्शिया है, और वो बहुत सुंदर है। ना केवल वो बहुत सुंदर है, उसके पास बेशुमार दौलत है, और वो कहता है कि इसकी सुंदरता के बारे में सारी दुनिया जानती है, वो कितनी वर्चुअस है, कितनी दौलतमंद है, कितनी सुंदर है। और वो कहता है कि कभी कभी मैंने उसकी आँखों में मेरे लिए प्यार देखा है। जब वो कहता है, समटाइम्स फ्रॉम हर आइज़ आई डिड रिसीव फेयर स्पीचलेस मैसेजेस, उसने ज़बान से तो अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन आँखों ही आँखों से मुझे ये महसूस करवाया कि वह भी मुझसे प्यार करती है। बेसानियो पोर्शिया को कैटोस डॉटर ब्रूटस पोर्शिया के साथ में कंपेयर करता है। अब ये कैटोस डॉटर कौन है, ये ब्रूटस कौन है? तो कैटो और ब्रूटस ये शेक्सपियर के एक प्ले है, जूलियस सीज़र। जूलियस सीज़र में जूलियस सीज़र का एक जनरल था, उसका नाम था कैटो, और उसकी डॉटर का नाम था पोर्शिया। ब्रूटस जो था वह भी एक नोबल था, और जूलियस सीज़र का सबसे जिगरी दोस्त था, और वो पोर्शिया से शादी करता है, उस कैटो की बेटी से। वो पोर्शिया जूलियस सीज़र की पोर्शिया
जो कैरेक्टर थी वो बहुत सुंदर थी। यहाँ पर एक बात पे हमें ध्यान देना है कि जूलियस सीज़र और मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये दोनों प्ले जो है ये शेक्सपियर के प्ले है, और शेक्सपियर ने जूलियस सीज़र एक हिस्टोरिकल बेस्ड प्ले पहले लिखा, मर्चेंट ऑफ वेनिस बाद में लिखा। लेकिन जैसा कभी कभी होता है ना, किसी फिल्म का शेल्फ लाइफ ज़्यादा लंबा होता है, तो वैसा जूलियस सीज़र बाद में रिलीज़ हुई और मर्चेंट ऑफ वेनिस पहले रिलीज़ हुई। तो थोड़ा सा समझाने में ये इसलिए मुझे आपको समझाना ज़रूरी पड़ गया कि पोर्शिया जो है वो यहाँ पर जूलियस सीज़र की पोर्शिया है, जो कैटो की बेटी थी। कैटो एक रोमन स्टेटमेंट था और वो ब्रूटस की बीवी थी। ब्रूटस कौन था? एक ब्रेव रोमन जनरल था। वो जूलियस सीज़र को, जब एक कॉन्स्पिरेसी होती है जूलियस सीज़र को एलिमिनेट करने की, जूलियस सीज़र का मर्डर करने का, तो ब्रूटस इसमें सबसे लीड रोल निभाता है। तो ये एक ट्विस्ट लाता है स्टोरी में। लेकिन यहाँ पर हम जो जिक्र कर रहे हैं वो पोर्शिया के बारे में जिक्र कर रहा है। तो यहाँ पर बेसानियो पोर्शिया को जूलियस सीज़र के प्ले वाली पोर्शिया से कंपेयर करता है। फॉर द फोर विंड्स ब्लो इन फ्रॉम एवरी कोस्ट, renowned suitors and her sunny locks hang on her temple like a golden fleece, which makes her seat of Belmont Colchos's strand. And many Jasons come in quest of her. O my Antonio, had I but the means to hold a rival place with one of them, I have a mind presages me such thrift that I should questionless be fortunate. तो ये कहता है कि पोर्शिया इतनी सुंदर है कि वो एक बेलमोंट को कोलकोसिस से कंपेयर करता है। कोलकोस क्या है? कोलकोस ये एक आइलैंड है ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ ब्लैक सी। ब्लैक सी के ईस्ट कोस्ट पे एक आइलैंड है जहाँ पर ये एक गोल्डन फ्लीस, यानी एक ऐसी भेड़ है, एक ऐसा शीप है जिसका जो ऊन है, जिसका जो वुल है वो गोल्ड का है। गोल्डन नहीं है बल्कि गोल्ड का है। तो ये एक ग्रीक लेजेंड है। यहाँ पर जो रैम है, जो शीप है, उसका जो वुल जो है गोल्ड होने की वजह से ऐसे बहुत सारे बहादुर योद्धाएं उस शीप को हासिल करना चाहते थे। मेल शीप को रैम कहते हैं। उस रैम को हासिल करना चाहते थे और आखिरकार एक बहुत ही फेमस हीरो, उसका नाम था जेसन। जेसन ने अपने पिता के मदद से, अपने पिता और अपनी वाइफ की मदद से उस ड्रैगन को हराया, जो ड्रैगन इस शीप की रक्षा करता था, इस रैम की रक्षा करता था। ये रैम जो था वो कोलकोस के एक टेम्पल में रखा गया था। तो ऐसे बहुत सारे हीरोज़, बहुत सारे बहादुर इस रैम की तलाश में निकले थे। वैसे ही बहुत सारे जेसन्स जो है पोर्शिया की तलाश में निकलते हैं। तो बेसानियो कहता है, काश अगर मेरे पास उतना पैसा मिल जाए कि मैं अपने आप को पोर्शिया के समक्ष रख सकूं, मैं अपने आप को किस्मतवार समझूंगा। तो अंटोनियो कहता है, Thou knowest that all my fortunes are at sea, neither have I money nor commodity to raise a present sum. Therefore go forth, try what my credit can in Venice do, that shall be racked even to the uttermost, to furnish thee to Belmont, to fair Portia. Go, presently inquire, and so will I, where money is, and I no question make to have it of my trust or for my sake. तो बेसानियो का जवाब देते हुए अंटोनियो कहते हैं कि आप तो मेरी हालत अच्छी तरह से जानते हैं। आप जानते हैं कि मैंने अपना पूरा पैसा जो है समुद्री जहाज़ों पर लगा दिया है। मैंने दाव खेला है समुद्र के ऊपर, और अभी मेरे पास ना ही इतना पैसा है कि मैं तुम्हें दे सकूं, और ना ही ऐसी कोई प्रॉपर्टी है कि मैं बेचकर आपको ये पैसा जमा कर सकूं। अगर हम एक्ट 1 सीन 1 की शुरुआत की बात करते हैं, जहाँ पर अंटोनियो उदास पाया जाता है और वो कहता है कि उसे पता नहीं कि वो उदास क्यों है। आपको याद होगा कि उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि आप शायद इसलिए उदास हो क्योंकि आपने अपना पूरा पैसा जहाज़ों पर लगा दिया है।
तो ऐसा लगता है, ये डायलॉग सुन के लगता है कि बिल्कुल उसके जो फ्रेंड्स थे सेलेरिनो और सेलानियो जो थे वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि अब अंटोनियो कबूल करता है कि आप जानते हैं कि मेरा पूरा पैसा है जो मैंने समुंदर पे लगा दिया है, और अभी मेरे पास ना ही पैसा है, ना ही मेरे पास ऐसी कोई कमोडिटी है, ना ही कोई प्रॉपर्टी है कि मैं बेचकर आपके लिए वो पैसा इकट्ठा कर सकूं। लेकिन वो कहता है कि घबराओ मत, चिंता मत करो, मार्केट में मेरा इतना मान सम्मान है कि आप मार्केट में जा सकते हैं, और अगर किसी के पास में आपको जितना पैसा चाहिए वो पैसा होगा, आप उससे जाकर वो पैसा मेरे नाम पर उधार ले लो। इसकी अश्योरिटी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, और मैं भी तलाश करता हूँ कि मार्केट में अगर किसी के पास होगा तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं अपने आप को दांव पर लगाकर ये पैसा मैं आपको दिला कर रहूँगा। और यहाँ पर हमारा एक्ट 1 सीन 1 ख़त्म होता है। एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ख़त्म होता है। अगले क्लिप में जो मैं पोस्ट करूँगा वो एक्ट 1 सीन 2 का सीन पोस्ट करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है। ज़रूर कमेंट्स में आप कमेंट डालिए और मुझे और हिम्मत दो, प्रेरणा करो कि मैं और अच्छा आपको ये मर्चेंट ऑफ वेनिस समझा सकूँ। So this is Tyron signing off for today.